The masters of some merchant and the merchant have just our theme of woe. But for the miracle, I mean our preservation, few in millions can speak like us. Then wisely, good sir, weigh our sorrow with our comfort. The first lines of Act 2 Scene 1 ये extract दिया इन्होंने. Questions जब आपसे पूछेंगे, you have to write the answers to the point. जितना पूछा है सिर्फ उतना लिखना है. So if the question is of 2 marks, then maximum 4 lines, not more than that. और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पूछा वो लिखा. गॉन्जेलो की इस स्पीच के बाद इन्होंने पहला क्वेश्चन हमसे पूछा, हु आर टॉकिंग टू वन अनदर एंड वेयर. हु आर टॉकिंग टू वन अनदर एंड वेयर. हाउ आर द मेन सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग. So the first question has 3 parts. The first part is who are talking to one another, where are they talking, and then it is beta how are these men saved from drowning, और ये बच कैसे गए ड्राउनिंग से. अब अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप पहला तो ये देखेंगे, ये नहीं पूछा गोंजालो किससे बात कर रहा है, इन्होंने पूछा है who are talking to one another. So you have to write down all the people who are present in the scene because they are talking to one another. So you will write Alonso, Sebastian, Antonio, Gonzalo, Adrian, Francisco, and others are talking to one another. Where are they? They are on another part of the island. फिर नेक्स्ट लाइन में आंसर लिखेंगे, हाउ आर द मेन सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग. तो बच कैसे गए. सो क्लियरली यू हैव टू राइट डाउन, they have been saved by the magic of Ariel, because the tempest that they faced was also created by Ariel at the instructions of Prospero. So they were saved. It was the order of Prospero that no one should be hurt. That is why they are not drowned. We have not written extra, we have just written to the point. The second question is, who is feeling most dejected and why? कौन सबसे ज्यादा डिजेक्टेड फील कर रहा है और क्यों? Who is trying to console him? 3 marks. तो वो सोचने वाली बात है. 3 parts of the question, 3 marks. हर का जवाब भी एक एक लाइन में दिया तो हो गया. Who is feeling most dejected? Dejected is hopeless. So you are going to write down, King of Naples Alonso is the most dejected. The reason is that he believes that his son Ferdinand has been drowned. And then you change the paragraph, that means write in the next line. And that is beta, who is trying to console him. Then you will write down, the old and loyal counselor, minister of Alonso is trying to comfort him. He is speaking soothing words to make him somewhat relaxed. इजी वाले इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. जो डिफिकल्ट वाले हैं उसमें फिर हम बोलेंगे कि हाँ जी अब आप. और जबकि बेटा कमाल की बात यह है कि ये जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं इसी में मार्क्स कटते हैं. How does Alonso respond at Gonzalo's soothing words? How does he respond? Who have no sympathetic attitude towards Alonso? किसका sympathetic attitude नहीं है? Again, that is the two parts of the question. So how does Alonso respond? Alonso is not ready to listen to the comforting words of Gonzalo. He refuses it as a man refuses cold porridge.
So he has no attention to the words of Gonzalo. He is so much grief stricken. Itna dukhi hai. He is so much grief stricken. Then you will write down who have no sympathetic attitude towards Alonso. Ironically, आप उसमें लिखेंगे ironically his own brother Sebastian is or have no does not have any sympathy for him. Ironically, Alonso's own brother does not have any sympathy for him. Later in the extract, he taunts him also. At the same time, Antonio does not have any kind attitude towards Alonso. Both of them are making fun. They are not interested. इसके बाद का जो बेटा क्वेश्चन जो थोड़े डिफिकल्ट वाले होंगे वो मैं आपसे जो आपसे बोलूंगी कि अब आप इसको लिख लो ताकि आपको अंडरस्टैंड हो ये कैसा थोड़ा सा हमें परेशान करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अब इन्होंने बेटा हर उसमें आता ही आता है. गिव द एक्सप्लेनेटरी मीनिंग्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव पैसेज. ऐसे में ये वर्ड्स दे रहे हैं और उसका मीनिंग पूछ रहे हैं. मीनिंग पूछ रहे हैं, लाइन मत लिखना. डोंट राइट डाउन द होल थिंग. वो लंबा लंबा लिखना नहीं. लाइन्स यू डोंट हैव टू राइट डाउन. यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. तो इन्होंने 3 वर्ड्स हमसे पूछे. इन्होंने पूछा है अवर एस्केप का मीनिंग क्या है. और बेटा अवर एस्केप सेकेंड लाइन में दिया हुआ है. एंड दैट इज बेटा पेज नंबर 50 पर पढ़ रही हूं मैं. शुरू की लाइन्स हैं बिल्कुल. ये देखो, इन्होंने बोला है beseech you sir be merry, you have cause, so have we all of joy for our escape. इन्होंने पूछा what is the meaning of our escape. तो जब आप our escape लिखोगे तो आपको इतना लंबा नहीं लिखना है. Our escape refers to बेटा surviving the tempest. That means surviving from drowning. They did not drown. That is the escape. What is the meaning of our escape? Escape means they survived the tempest. They survived the drowning. उसके बावजूद वो बच गए हैं. तो लंबी लंबी लाइंस बच्चे एक्सप्लेन कर देते हैं. नो यूज. सेकंड इन्होंने बोला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर थीम ऑफ वो. आवर थीम ऑफ वो. और बेटा यहाँ पे थीम नहीं है, दैट इज हिंट ऑफ वो दिया हुआ है. थर्ड लाइन देखो, इज मच बियॉन्ड अवर लॉस फुल स्टॉप अवर हिंट ऑफ वो. इसका मीनिंग बता पूछा है हमसे. कैसे लिखना है? अगेन यू हैव टू राइट डाउन टू द पॉइंट. 0.5 मार्क्स का आता है. आप बोलेंगे दैट मीन्स द सेम कॉज ऑफ डिस्ट्रेस, द सेम कॉज ऑफ मिजरी एज them. Same cause of misery. देखो, our hint of woe is common. इसका मतलब the same cause of misery. Hint का मतलब हो गया the cause, the same cause of misery. वो का मतलब distress लिख लो, misery लिख लो. ऐसे पूछते हैं बीच में से. तो अच्छी तरीके से बिल्कुल पढ़ पढ़ के जाना होता है. और बेटा थर्ड इन्होंने पूछा है weigh our sorrow with our comfort. इसका मीनिंग बताइए. weigh our sorrow with our comfort. लास्ट लाइन बेटा, ये तो वैसे भी इन्होंने दिया हुआ भी है साइड में बुक में. तो weigh our sorrow with our comfort का मतलब बैलेंस द वन अगेंस्ट द अदर. इसका मतलब they must balance the misery with their survival. The misery they have suffered in comparison to the survival they have got. बच गए हैं. तो आप इसको बोल सकते हैं they should measure their sorrows, their happiness against their miseries. तो चाहे आप कंफर्ट की जगह हैप्पीनेस लिख रहे हो, चाहे आप बोल. इसीलिए जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को समझा रही हूँ. 10th तक ऐसा नहीं होता था बेटा, ये लोग एक एक छोटी छोटी चीजें हमसे पूछे. अब पूछते हैं.
तो इसको जरा थोड़ा ध्यान से पढ़ने का पैटर्न, और दूसरा नोट्स तो भेज ही दिए हैं, तो वो तो प्रिंट आप ले ही लो तो अच्छा ही है। नाउ यू राइट डाउन द क्वेश्चंस जो कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं जो इन्होंने पूछे हैं, एंड दैट इज, देखो क्वेश्चन 2 मैं लिखवा रही हूं और फिर उसके आंसर्स थोड़ा सा डिक्टेट करूंगी ताकि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना समझ आए। What real facts, घुमा के पूछा इन्होंने, what real facts does Gonzalo present, रजिस्टर में लिख लो एक्ट 2 सीन 1, what real facts does Gonzalo present before King Alonso, before King Alonso, while consoling his dejected feelings, while consoling his dejected feelings, while consoling his dejected feelings. Question: what real facts does Gonzalo present before King Alonso while consoling his dejected feelings? Question mark. अभी ये थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन है, इन्होंने ये 2 मार्क्स का दिया है। अब इसको हमने जब समझा कौन से रियल फैक्ट्स गोंजालो बता रहा है ओलेंसो को कंफर्ट देने के लिए, तो 3 बताए हैं उसने। सेलर्स वाइफ के जीवन में ऐसी मिस इवेंट्स होते रहते हैं, सेलर्स के लाइफ में होते रहते हैं, मर्चेंट शिप्स के जो मालिक होते हैं उनकी लाइफ में होते रहते हैं, और बेटा मर्चेंट्स की लाइफ में होते रहते हैं, सेलर्स की लाइफ में होते रहते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा उसको घुमा करके पूछ लिया व्हाट रियल फैक्ट्स डज गोंजालो प्रेजेंट, कब उसको खुश करने के लिए रियल फैक्ट्स उसने क्या दिए हैं। So we will write down those 3 different things जो वो बोलता है कि ऐसा तो सबके साथ होता है, उनसे कंपेयर करो, हम तो बहुत लकी हैं। Write down the answer now. It is Gonzalo presents some real facts before Alonso. Gonzalo presents some real facts before Alonso. Full stop. He tells that the kind of misfortune, he tells that the kind of misfortune which has befallen upon them comma is something which occurs often in the lives of many people. Full stop. Every other day some sailor is reported, सुनने को मिलता है, every other day some sailor is reported to have perished in the sea. Full stop. Many times the wife of
A sailor becomes a widow, becomes a widow, comma, crying over his shipwreck. Crying over his shipwreck. WRECK. Full stop. Similarly, comma, owners of the ships, owners of the ships suffer, owners of the ship suffer heavy losses, heavy losses when their ships, when their ships are lost in the sea. When their ships are lost in the sea. 3 examples we have given: sailors, wives, and the merchants. और बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने नेक्स्ट पार्ट में लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एंड इट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वाला, what does, second question देखो, what does wisdom demand to the survivors? What does wisdom demand to the survivors? Question mark. What character of Gonzalo, what character of Gonzalo do we find here? Very important. What character of Gonzalo do we find here? पहला पार्ट हो गया, व्हाट डज विजडम डिमांड टू द सर्वाइवर्स. विजडम क्या कहती है, समझदारी क्या कहती है, और इसका कैरेक्टर क्या है. व्हाट कैरेक्टर ऑफ गोंजालो डू वी फाइंड हियर? अगेन वी विल राइट डाउन बोथ द पार्ट्स ऑफ द आंसर्स, और दोनों में ऐसा लंबा नहीं. विजडम कहती है ब्राइटर साइड में देखो, उदास होने की जरूरत नहीं है, और गोंजालो लॉयल है, होपफुल है, ऑप्टिमिस्ट जिसे बोलते हैं वो है. तो सो सिंपल इट इज. नाउ राइट डाउन, इसका और आंसर लिख लेते हैं बेटा. विजडम, विजडम डिमांड्स, विजडम डिमांड्स that the survivors should think. Wisdom demands that the survivors should think of the bright side of the picture, of the bright side of the picture. Full stop. They should ignore the dark side. They should ignore the dark side. Full stop. It means, इसका मतलब है, it means they should consider themselves fortunate. They should consider, consider मतलब think themselves fortunate because they are safe and sound. Because they are safe and sound. नहीं अनुष्का बेटा, क्वेश्चंस तो मैं अपने पास से दे रही हूँ. Questions you will not find in the books. I have another book, so I am discussing the questions from the book. So जो तुम्हारे पास workbook होगा उसमें से तुम अपने आप solve कर लेना. कोई problem होगा then you ask me. अभी तो questions I am giving from my side. I have another book, तो मैं उसमें से question papers में से questions दे रही हूँ. You will not find the questions, child. So it is like beta, they are now safe and sound.
नाउ ये वाली बात हो गई जो हमने बोला, व्हाट डज विजडम डिमांड टू द सर्वाइवर्स। नाउ नेक्स्ट लाइन में लिखना है गोंजालो का कैरेक्टर स्केच। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो ताकि पता चल जाए कि हमने सेकंड पार्ट को भी अटेम्प्ट किया है। सेकंड पार्ट के लिए बेटा लिखिएगा, गोंजालो गोंजालो strikes a positive note. Gonzalo strikes a positive note. Full stop. It means he is a worldly wise man. A worldly wise man. A worldly wise man. वर्ल्ड के हिसाब से वाइज है. फुल स्टॉप. He looks on the bright side of the things. He looks on the bright side of the things. Full stop. He is happy to be alive. He is happy to be alive and hopeful. Full stop. अब अंडरलाइन क्या करेंगे बेटा? हैप्पी एंड होपफुल उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई. एक और हमने कैरेक्टरिस्टिक इसकी लिखी है वर्ल्डली वाइज मैन, उसको अंडरलाइन करो. और अभी एक और चीज आने वाली है, दैट इज, एक लाइन और लिखिएगा बेटा. Gonzalo is sincerely devoted to Alonso. Gonzalo is sincerely devoted to Alonso and wants him to be cheerful. फुल स्टॉप. तो एक और कैरेक्टर स्केच हो गया, दैट इज सिंसियरली डिवोटेड टू ऑलंसो. अभी जब जैसे जैसे ये सीन खत्म होगा बेटा, मैं पूरा आपको एक पूरा शॉर्ट इसका समरी और कैरेक्टर स्केच और एवरीथिंग आई विल गिव यू. वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा आपको, वो प्रिंट आउट ले लेना और उसमें से पढ़ लेना. आधे आंसर्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे. पर हाँ, मेक श्योर कि आप सुनते जाओ, क्योंकि जैसे जैसे नया वाला हम अपलोड करेंगे तो पुराना वाला आई विल डिलीट. अब बेटा आ जाओ जरा ग्रामर पे. आज हमारे पहले फ्रेजल वर्ब्स लिखवा लेती हूँ, उसके बाद में फिर दूसरे की बात करेंगे. फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे. I suppose we did the phrasal verbs of give. 31 नंबर पे हमने लास्ट टाइम किया था give. आज जो हम फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं उसको लिखो get. 32 नंबर लिखो get. और बेटा get के साथ में आपको पता है got के लिए भी यही आएंगे, getting के लिए भी यही आएंगे. get, got, getting कुछ भी हो, सब में यही वाले चलेंगे. गेट के लिख के उसके नीचे प्रीपोजिशंस लिखो अहेड, फिर उसके नीचे लिखो अप. तो गेट अहेड, फिर हो गया गेट अप, फिर हो गया गेट थ्रू, फिर हो गया गेट थ्रू, फिर बेटा लिखो गेट ओवर, फिर उसके नीचे लिखो अलोंग. क्या क्या बोला अभी और भी है, पर मैं रिवाइज करवा रही हूँ. आपने गेट लिखा, फिर गेट के नीचे आपने लिखा अहेड, अप, थ्रू, ओवर, अलोंग. अलोंग के नीचे लिखो ऑन विद. फिर उसके नीचे सिर्फ लिखो ऑन. एक आ गया ऑन विद और फिर लिखो ऑन. फिर बेटा उसके नीचे लिखो अवे विद. फिर उसके नीचे लिखो अवे. और लास्ट लिखो एट.
तो गेट के आपने फिर लिखा ऑन विद, फिर आपने लिखा ऑन, फिर आपने लिखा अवे विद, फिर सिर्फ अवे और फिर एट। अब गेट के हम लिख रहे हैं मीनिंग्स। तो पहला, सबसे पहला आपने लिखा गेट अहेड। अहेड का मतलब आगे निकलना होता है, वही इसमें आएगा बेटा। गेट अहेड का मतलब लिखो गो फॉरवर्ड। अब गो फॉरवर्ड में फिजिकली भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, किसी भी सेंस में गो फॉरवर्ड है, मतलब आगे निकलना, गेट अहेड। इसके बाद बहुत इजी है गेट अप। गेट अप का मतलब राइज फ्रॉम द बेड या ड्रेस्ड अप, कुछ भी बोल सकते हो। गेट अप का मतलब गेट अप फ्रॉम द बेड, दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द बेड, या फिर बेटा हो सकता है ड्रेस्ड अप। इसके बाद था गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सीड, सक्सीड। और कंफ्यूज्ड मत होना, समझ लो पहले तुम बहुत अच्छी तरीके से। एक क्या है गेट अहेड, तो गेट अहेड का मतलब फॉरवर्ड जा रहे हैं हम। पर बेटा जब गेट थ्रू का मतलब हो रहा है तो उसका कुछ आगे जाने से मतलब नहीं है, सक्सीड है, सक्सेसफुल होना है, पीछे छोड़ना नहीं है किसी को। फिर एक आपने लिखा गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर, रिकवर करना। ये तो पता है, इजी है। अब यहां से फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी। गेट अलोंग का मतलब लिखो फ्रेंडली। गेट अलोंग इज फ्रेंडली, जबकि गेट ऑन विद का मतलब है लिव टुगेदर, लिव टुगेदर। और जहां दो प्रीपोजिशंस होते हैं, मैं बोलती हूँ हमेशा उसको ध्यान से याद करो। याद क्या करना, मतलब पढ़ो। गेट ऑन विद, ऑन विद का मतलब क्या हो गया, लिव टुगेदर, साथ साथ रहना। तो कितना अंतर होता है, गेट अलोंग का मतलब फ्रेंडली होना, साथ रहना नहीं, साथ रहना इज ऑन विद, दैट इज द डिफरेंस। जैसे गेट थ्रू में करा था और गेट अहेड में किया था। नेक्स्ट लिखे हैं बेटा गेट ऑन। गेट ऑन, गेट ऑन मतलब प्रोग्रेस लिख लो, कॉन्टिन्यू लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, कॉन्टिन्यू, प्रोग्रेस। गेट अवे विद का मतलब लिखो विदाउट बीइंग पनिश्ड, विदाउट बीइंग पनिश्ड। गेट अवे विद, बिना पनिशमेंट के चले गए, भाग गए। गेट अवे का मतलब है एस्केप, एस्केप। तो गेट अवे जेल में से, और गेट अवे विद पनिशमेंट इन्हें मिला, वैसे ही भाग गए। ठीक है, वो तो भागे हैं कहीं से, निकले हैं कहीं से। गेट अवे, तो गेट अवे विद इज विदाउट बीइंग पनिश्ड। और बेटा गेट एट का मतलब पहला तो लिखो रीच, पहुंचना, रीच, और दूसरा लिखो अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। गेट एट का मतलब पहुंचना, रीच या फिर अंडरस्टैंड। आई एम गेटिंग एट द मीनिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। फाइन, थोड़ी सी इसके सेंटेंसेस लिख लो, आज ज़्यादा तो हमारे पास है नहीं टाइम, तो फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। लिखिए बेटा।